بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق اور ربا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جو مسلمانوں کو، خاص کر کے جن کو دین کی زیادہ نالج نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑا ہی مسئلہ بن جاتا ہے، اور لوگ اس مسئلے کی وجہ سے ان سے پیسے ایٹھتے ہیں، ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کی عزتوں پہ بات آ جاتی ہے اور ان کا پیسہ، جان، مال سب کچھ برباد ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ تعویذ، کیا اسلام میں تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر میں اپنی بات شروع کروں تو بڑی ہی سمپل بات سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ اس میں یہ بتاؤں گا کہ تعویذ جو ہے بالکل سخت منع ہے، شرک کا درجہ دیا ہے۔ جو تعویذ پہنے اس نے شرک کیا، حدیثیں بتاؤں گا، لاجک سے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور کوئی ایک غلط فہمی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآنی تعویذ کا کیا ہے، کہ اگر ہم قرآن لکھا ہوا ہو کسی تعویذ میں تو اس کا کیا معاملہ ہے، وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ بھی منع ہے۔ تو بس انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ تو سب سے پہلی بات، اگر ہم دیکھیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعویذ پہنتا، میرا ان سے بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے یا سلف صالحین نے کسی نے بھی تعویذ پہنا یا کسی نے بھی تعویذ دیا اپنے کسی دوست کو، کسی کو بھی، یا آپ صلی اللہ، ان کے بھی بچے بیمار ہوتے تھے، ان کے بھی بچوں کو نظریں لگتی تھیں، ان کے اوپر بھی جادو ہوتے تھے، کیا انہوں نے کبھی کسی کو تعبیر دیا؟ کیا وہ غریب نہیں تھے؟ کیا ان پہ مصیبتیں نہیں آتی تھیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ، کوئی صحابہ آپ کے پاس آئے کہ میں غریب ہوں یا مجھ پہ پریشانی ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی تعبیر دیا؟ صرف ایک حدیث لا دی، اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو پلیز ضرور لا دیے۔ کیا ایک بھی حدیث ہمیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعبیر دیا؟ نہیں ملے گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی جو ہے پہچان ہے تعویذ سے ہو گئی، کہ اگر کوئی مسلمان تعویذ نہیں پہنتا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلم ہی نہیں ہے۔ تو اب میں حدیثوں سے بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں لکھا ہے جو تعویذ بالکل سخت منع ہے اور شرک کا درجہ دیا ہے جس نے تعویذ پہنی۔ سب سے پہلی حدیث اگر آپ پڑھیں گے مسند احمد حدیث نمبر 16969، اس میں لکھا ہے کہ 10 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیعت لینے اسلام پر۔ آپ نے ان میں سے 9 کا اسلام پہ بیعت لے لی، لیکن ایک کی نہیں لی۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اس کی کیوں نہیں لی؟ تو کہا اس نے تعویذ پہنا ہے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، اس کی بیعت نہیں لی جائے گی۔ تو اس نے تعویذ اپنے گلے میں سے نکالا اور پھینک دیا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس نے تعویذ پہنی اس نے شرک کرا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حدیث کافی ہے، عقل مند کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہے، اور بیوقوف کے لیے کتنا بھی اسے سمجھا لو وہی کافی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں اور بھی حدیثیں بتاؤں گا۔ اتنی بڑی وحی گئی، اتنی بڑی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کرا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرا۔ دوسری حدیث میں بتاتا ہوں، جامع ترمذی حدیث نمبر 2072، اس میں لکھا ہے جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی جس نے کوئی چیز لٹکائی اس نیت سے کہ یہ صرف بلاؤں کو ٹال سکتا، مصیبتوں کو ہٹا سکتا، اچھائی کو لا سکتا، تو اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ جا اب اسی سے مانگ۔ لکھا ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3883 میں، جس نے کوئی چیز لٹکا لی اس نے شرک کرا۔ تو ہر دفعہ جس نے تعویذ پہنی اس نے شرک کرا، شرک کا لفظ آ رہا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور لکھا ہے مسند احمد حدیث نمبر 16951 جو من کے گلے میں ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو من کے گلے میں ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے، جو کوئی کوڑی یا سیپی ڈالے اس کو اللہ کبھی آرام نہ دے۔ اور لکھا ہے سلسلہ حدیث الصحیح حدیث نمبر 492 میں کہ جس نے تعویذ پہنی اس نے شرک کرا۔ اتنی ساری حدیثیں بتا چکا ہوں کہ جس نے تعویذ پہنی اس میں شرک کرا۔ اب تو کوئی بیوقوفی ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی کہاں پر لکھا ہے بتاؤ اور کہاں منع ہے بتاؤ۔ پھر بھی میں ابھی اور بھی بات بتاتا ہوں اور پھر لاجک سے بتاؤں گا۔ اگر آپ پڑھیں گے سنن نسائی والیوم 6 بک 48 حدیث نمبر 5070، اس میں رویفی بن ثابت
तो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सफ़र में थे और उन्होंने माफ़ करिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वफ़ी हो सकता है तुम्हारी उम्र मेरे से लंबी हो, तो तुम आगे आने वाले लोगों से कह देना, जिसने अपनी दाढ़ी को बांधा या उसे घुमाया, अपनी दाढ़ी को ऐसे बांध के रखा, बांध के रस्सी से या किसी भी चीज़ से, या उसे घुमा के रखा, या ताबीज़ लटकाई, या फिर गोबर और हड्डी का इस्तेमाल करा इस्तिंजा में, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे कोई लेना देना नहीं। इतनी बड़ी बात कह दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे कोई लेना देना नहीं जिसने ताबीज़ गले में डाली। हमारे मेन बात उसमें हदीस में ताबीज़ का कि जिसने ताबीज़ लटकाई उसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखेंगे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब हज़रत अस्वद का आता है कि हज़रत अस्वद को मुस्लिम चूमते हैं, काले पत्थर को, जैसे काला पत्थर कहते हैं सऊदी में, तो क्या उसका क्या मामला है? आप उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा जब उसे चूमा और उसे कहा, बुखारी की हदीस है वॉल्यूम 2 बुक 26 हदीस नंबर 667, उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ पत्थर है, कि तू ना तो मुझे किसी को फ़ायदा पहुँचा सकता और ना ही किसी को नुकसान पहुँचा सकता, लेकिन हम इसलिए तुझे चूमते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा। यानी इससे ज़्यादा और कुछ वो नहीं। बहुत से लोग वो हज़रत अस्वद से बहुत सी पता नहीं क्या क्या सोच के रखते हैं कि भाई बड़ा कीमती पत्थर है और पता नहीं शिफा है उसमें और ये है वो है। भाई जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कह दिया तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। और भी मैं समझता हूँ कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई हदीस आ गई तो अब कोई भी मुस्लिम कितना भी बड़ा आलिम हो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता, उनकी हदीसों के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ कह रहे हैं कि जिसने ताबीज़ पहनी उसने शिरक करा। और यहाँ पर कोई ताबीज़ में डिफरेंस नहीं है कि कुरानी ताबीज़ पहनी तो उसने शिरक नहीं करा और जिसने कुरानी पहनी मतलब कुरानी नहीं पहनी उसने करा, ऐसा कुछ नहीं है। कुरानी हो गैर कुरानी हो कुछ भी हो उसने शिरक करा। बाकी अभी मैं लॉजिक से भी बताऊंगा आपको। बाकी हम देखते हैं एक नींबू, मैं नींबू की बात करूं कि एक नींबू जिसे इंसान पैदा कर रहा है, इंसान उसकी रखवाली कर रहा है, कीड़े मकोड़ों से हैं उसको बचा रहा है, लेकिन वही नींबू अगर मार्केट में आ जाए तो भाई साहब उसमें अजीब ताकतें आ गई। अगर वो गाड़ी के आगे लटक जाए, घर में लटक जाए तो फिर तो वो बलाओं को टाल सकता, मुसीबतों को ख़त्म कर सकता, बीमारियों को ख़त्म कर सकता है, पैसे को ला सकता। मतलब अजीब सोच है। बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि भाई एक नींबू है और अगर उस नींबू पे मिर्ची लग गई ओ हो फिर तो वो एटम बम हो गया, फिर तो वो सब कुछ कर सकता है। मतलब नींबू और मिर्च जिसकी कोई सबसे हकीर सब्जी है, और मिर्ची तो फ्री में दे देते हैं सब्जी वाले, आप कोई भी सब्जी खरीदो मिर्ची फ्री में मिल जाती हैं उसके साथ। तो इतनी हकीर सब्जी के साथ हम मुसलमानों ने अपना अकीदा इतना ख़राब कर लिया है कि हम शिरक तक उतर आए। अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ताबाइन जो हैं अपने बच्चों के गले में ताबीज़ डाला करते थे, कि वो बोर्ड डाला करते थे उस पर दुआएं लिखी होती थी, तो हाँ सही बात है ताबईन डाला करते थे, लेकिन उसका मकसद क्या था? वो दुआओं का मकसद था, एक बोर्ड होता था जिस पर दुआएं लिखी होती थी ताकि बच्चे उसे पढ़ें और उसे याद करें और दूसरे भी उसे देखकर उसे याद करें। उसका मकसद ये नहीं था कि वो उनकी शिफा करेगा, वो उनको गुनाहों से बचाएगा और वो उनको बुराई से बचाएगा, वो उनके लिए अच्छाई लाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो ये था कि वो बच्चे उसे याद करें और दूसरे भी देख के उसे याद करें। तो ये तो अच्छी बात है, अगर आप इस नीयत से डालते हैं तो बिल्कुल डालें, बड़ा सा बोर्ड डालें उसमें दुआ लिखे, और वो हमेशा बदल देते थे उसे। अब मैं थोड़ा लॉजिक से बताता हूँ। अब लोग भाई इतनी हदीसें, मैंने वैसे तो हदीसें बता दी, अब लॉजिक से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब मैंने हदीस ही बता दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अब किसी इंसान के लिए, किसी मुस्लिम के लिए ये जायज़ नहीं है कि अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बातें बता देता हूँ, क्योंकि ये जो ताबीज़ का मामला है ना बड़ा अजीब है, लोग मानते नहीं हैं। अब हमारे बड़े कहते हैं भाई हमारे बड़े करते हैं वो क्या गलत हैं और ये फलाना ढिमकाना। भाई जब एक बच्चा बालिग हो जाता है ना तो वो फिर अपना जिम्मेदार है। मान लीजिए किसी ने चोरी करी और उसे पुलिस ने पकड़ लिया, अब वो कह रहा है भाई मेरे तो बाप दादा चोर थे, वो उन्होंने मुझे चोरी सिखाई है बचपन से, मुझे तो यही सिखाया कि यही अच्छा है। क्या वो इस चीज़ से बच्चा बच सकता है? पुलिस वाला क्या कहेगा, भाई अब तू बड़ा हो गया, ये तेरी जिम्मेदारी थी कि तू जानता तू इस काम को छोड़ देता। तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही बात को पता करें। हो सकता है आपके बड़े गलत हो सकता है, ये इसमें कोई अजीब बात नहीं है, बड़े गलत हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा दीन और हक हमें देखना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए, उनके कदम पे चलने, कोई बड़ों के कदम पे नहीं चल रहे। तो आप अपने बड़ों को समझाइए। अब ये कुरानी ताबीज़ का कि भाई
कुरान में लिखा है, कुरान में तो शिफा है, तो अगर कुरान को लटका लिया तो क्या हो गया। तो भाई ऐसे तो शहद में भी शिफा है, कुरान में लिखा है कि शहद में शिफा है। और मैं एक एग्जांपल से बात बताता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई लिखी, आपने बाज़ार से ख़रीद के दवाई गले में लटका ली। अब लोग पूछ रहे हैं भाई गले में क्यों लटकाई, कि भाई मुझे बुखार है बहुत तेज़ और डॉक्टर ने ये दवाई दी है तो मैं इसे गले में लटका रहा हूँ, ये बुखार से हिफाजत करेगा। लोग कहेगा कितना बेवकूफ़ इंसान है भाई, उसने खाने के लिए दी है, दवाई खाने के लिए होती है। अब शहद में शिफा है, कुरान में लिखा है, तो क्या शहद आप बड़ी सी डिब्बी खरीदो शहद के और गले में लटका लो, तो भाई शहद में तो शिफा है, शहद शिफा देगा। तो ऐसा नहीं है, कुरान पढ़ने से फ़ायदा है, ना कि गले में लटकाने से या दुकानों में लटकाने से या घरों में लटकाने से। उससे शिफा नहीं मिलेगी, उसे पढ़ने में शिफा है मेरे भाई, ये तरीका है। तो कुरानी ताबीज़ भी मना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने ताबीज़ पहनी, उसमें ये नहीं कहा कि कुरानी ताबीज़ पहनी तो सही है और कुरानी नहीं पहनी तो गलत है। तो साफ कहा जिसने ताबीज़ पहनी उसने शिरक करा, अल्लाह के साथ शरीक करा, और शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। अब कुछ लोग ये कि भाई उतार देंगे तो हमें ये होता, हमने उतारा था तो हमें जिन लिपट गए, फलाने हो गए, उल्टियाँ लग गई। तो भाई ये तो अल्लाह तुम्हारी आजमाइश लेता है ना, तुम उतारोगे तो तुम्हारा तो यकीन था उस पर कि ये शिफा देगा मुझे, जब तुमने उसे उतारा। अब अल्लाह तुम्हें आजमाए बिना कोई छोड़ेगा, वो तो तुम्हारी आजमाइश होती है। और कि भाई तुम देखते हैं ना कि तुम उतार के उस पर अल्लाह पे यकीन है या नहीं है, तुम ऐसे ही कह रहे हो। तो ये चीज़। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई अलग ही कैटेगरी के, कि भाई अल्लाह तो बड़ा रहीम है, माफ़ कर देगा, हैं कर लिया तो क्या हुआ। भाई उसकी कुछ कंडीशन होती है। अल्लाह रहीम है, बेशक रहीम है, सबसे बड़ा रहमान है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। ऐसे तो फिर नॉन मुस्लिम भी यही कहेंगे कि अल्लाह तो रहीम है, हम अगर शिरक कर रहे हैं तो क्या हो गया, हम अगर मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं तो क्या हो गया। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आपने मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें मैंने फर्स्ट सिमिलैरिटीज बता रखी है कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में भी मना है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो फिर ऐसे तो नॉन मुस्लिम भी कहेंगे कि भाई हम अगर कर रहे हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो बड़ा रहीम है, तो क्या ऐसा चलेगा, नहीं ना। तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में कि अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। और भाई जो लोग फंस जाते हैं ना इसमें ताबीज़ गंडों में, उनका पैसा बर्बाद होता है, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, वो कभी ज़िंदगी भर इससे नहीं निकल पाते, बस इसी में पड़े रहते हैं, अपना ख़राब कर लेते हैं कि यहाँ जाओ, इस कब्र पे जाओ, उस पे जाओ, 40 दिन यहाँ लगाओ, 8 साल यहाँ लगाओ, ऐसे ऐसे ड्रामों में फंस जाते हैं। अब मैं अपनी कुछ लास्ट की बात कह देता हूँ। जादू, वैसे ही जादू का टॉपिक है नहीं, वो एक अलग ही टॉपिक है, उस पर अलग ही वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं फिर कभी बहुत बड़ी वीडियो बनेगी उस पर कि अब अगर किसी को लगता है कि उस पर जादू है या कुछ भी, तो उसका इलाज क्या है। तो भाई सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि आप पर जादू है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ अपना। अगर डॉक्टर से सही नहीं हो रहा, और यकीन करो कि हाँ डॉक्टर से सही हो जाएगा, मुझ पर कोई जादू नहीं है, सिर्फ मैं बीमार हूँ, डॉक्टर से सही हो जाएगा, सबसे पहले ये यकीन रखो, क्योंकि हमारा दिमाग का भी सबसे बड़ा खेल होता है। अगर डॉक्टर से कुछ नहीं हो रहा तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसके पास जाओ, अगर उससे भी ना हो तब जाओ किसी मौलाना के पास। और मौलाना याद रखना, जो भी कुरान हदीस से इलाज करेगा वो कभी भी आपको कुछ बांधने, काटने, दफनाने, लटकाने कुछ नहीं देगा, वो आप पे सिर्फ दम करेगा, दुआ पड़ेगा, दम करेगा। और आप वो खुद भी कर सकते हो, आप आयतल कुर्सी पढ़ो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर निकला करते थे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को लेके घर से, तो कुरान की 2 आयतें पढ़ते थे, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक, उन पे दम करके फूंकते थे ताकि नज़र ना लगे। तो आप भी भाई याद करो। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई दुआएं याद नहीं है, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, उनका क्या जो अनपढ़ है। अभी अगर आपकी जॉब में कुछ कन्फिग्रेशन आ जाए कि भाई ये काम अगर आता होगा जब भी आप जॉब करोगे, वरना नहीं करोगे, तो आप तो बड़ी जल्दी सीखोगे उस काम को, हैं। तो फिर तो उम्र कुछ नहीं, फिर तो अगर नहीं भी आती ना, लैंग्वेज भी होगी, कुछ इंग्लिश भी होगी, अरबी भी होगी, या कुछ भी होगा, कोई काम कितना भी मुश्किल हो, नहीं मशीन ही क्यों ना चलानी हो, भाई आप फटाफट सीखोगे, क्योंकि पैसों का मामला है। तो भाई यहाँ भी थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत दिखाओ और पढ़ो, कोई उम्र नहीं होती याद करने की। और अगर नहीं आती, फिर भी नहीं आती, तो अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, जिसे पढ़ना आता है उससे कुरान पढ़वाओ और उससे अपने ऊपर फुकवा लो। फुकवाना सबसे आसान है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ताबीज़ वाबीज़ कोई भी जो इलाज करता है कुरान से, वो ना आपको ताबीज़ देगा, ना कुछ बांधने के लिए देगा, ना कुछ खाने के लिए देगा, ना लटकाने के लिए देगा, ना दफनाने के लिए देगा, ना ही आपसे पैसे लेगा, वो सिर्फ आप पे दम करेगा। सीधी सीधी बात, मस्जिद में जाओ, मौलाना साहब से दम करवा लो अपने ऊपर, बात खत्म। बाकी मैं इंशाल्लाह जब लाऊंगा कि जादू पर वीडियो के ये कैसे करते हैं, शोबबाजी और ये सब, तो काहिनगरी, उसमें बताऊंगा। और भाई जादूगरी हराम है, बिल्कुल सख्त मना है, शिरक है ये भी। तो भाई साफ सीधी बात, एंड में बस वीडियो में यही कहूँगा कि कोई भी धागे
सीपी, कोड़ी, मनका, पत्थर, अंगूठी, कुछ भी आप लटकाते हैं, दफनाते हैं, ठोकते हैं, चाटते हैं, पीते हैं इस नीयत से कि अगर ये शिफा को ला सकता है, बुराई को भगा सकता है, पैसे को ला सकता है, तबीयत को ला सकता है, तो वो शिरक है मेरे भाई, वो शिरक है। मर जाओगे इसी में। मैं साफ कहता हूँ कि भाई हमें जहन्नुम में पहुँचाने के लिए एक टीका ही काफ़ी है। ये सोच के अगर कोई लगा दे कि भाई ये टीका जो है नज़र से हिफाजत करेगा, या एक धागा ही काफ़ी है, चाहे वो पैर में बांधो, हाथ में बांधो, सर में बांधो, गले में बांधो, कहीं भी बांधो, वो शिरक है मेरे भाई। वो कहीं इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। मैंने लॉजिक से भी बताया है और हदीसें बता दी। जब हदीस बता दी तो लॉजिक कुछ का नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिल गई तो वही बहुत है हमारे लिए। लेकिन फिर भी मैंने लॉजिक बता दी कि लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि आज लोग इन सब में इतने ज़्यादा लिपटे पड़े हैं कि बस अल्लाह रहम करे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो इस काम में लिपटा हुआ है या फंसा हुआ है, अल्लाह उसे हिदायत दे, आमीन। और अगर कोई आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार या कोई भी है तो उसे वीडियो शेयर करो। ये भी एक दीन का काम है, अच्छी बात बताना भी दीन का काम है। मुझे सपोर्ट करो। तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, यही अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक और शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ज़ैकी टॉक्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।